السلام علیکم اسٹوڈنٹ، دس از می افشین احمد، موسٹ ویلکم نا یوٹیوب چینل ڈی ایس افشین. اسٹوڈنٹ آج ہم سٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 5 ایکسرسائز نمبر 5.1 اور اس کا کوسچن نمبر 1 اس لیکچر کے اندر کریں گے. بیٹا کوسچن نمبر 1، کوسچن نمبر 2 اور کوسچن نمبر 3 جو ہے یہی 3 شارٹ کوسچن ہیں اس ایکسرسائز کے اندر ہی ہیں، باقی سب کوسچن لانگ ہیں. اور اسی طریقے سے اسی کے ریلیٹڈ ریویو کے اندر ایک کوسچن ہے، اس کے آگے 4 پارٹ ہیں، وہ بھی آپ کے لیے شارٹ کوسچن ہے. تو ان میں سے 2 شارٹ کوسچن آپ کو پیپر میں آنے والے ہیں. تو امپورٹنٹ کوسچن ہے، آج ہم نے سیکھنا ہے. ایک تو وہ کام کرنا ہے کہ سمپل سالو کرنا ہے اور پھر نمبر لائن کے اوپر ریپرزینٹ کرنا، ظاہر کرنا سیکھیں گے. انتہائی آسان کوسچن ہے. چلتے ہیں بیٹا کوسچن کی طرف. سالو کا مطلب ہوتا ہے بیٹا حل کریں، ریپرزینٹ کا مطلب ہوتا ہے اینڈ کا مطلب ہوتا ہے اور ظاہر کریں، ریپرزینٹ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کریں دی سولوشن، یعنی جو آپ کا حل کیا ہوا سولوشن آیا ہے اون ا ریئل لائن، ریئل لائن کے اوپر، یعنی کہ ایکس کی ویلیو جو بھی ویریبل انوالو ہوتا ہے اس کی ویلیو نکالیں گے، اس کا سولوشن آ جائے گا، پھر اس کو نمبر لائن پہ بتائیں گے یہ کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے. چلتے ہیں بیٹا کوسچن کی طرف. انتہائی آسان ہے. سب سے پہلے ہم نے ایکس کی ویلیو نکالنی ہے، تو یہ کانسٹنٹ نمبر ہے، یہ پلس کا ہے. تو بیٹا ہم دوسری طرف لے جاتے ہیں، یہ ہر دفعہ کا کام ہوگا، یعنی -6 اور یہ پلس ہے، ادھر آ کے کیا ہو جائے گا مائنس. تو بیٹا اب یہ دیکھیں 12x آ گیا، مائنس مائنس کیا ہو گیا پلس، 6 اور 30 کتنا بن گیا 36، اور سائن بڑی رقم کا لگاتے ہیں. مائنس مائنس پلس تو ہوتا ہے، یہاں پہ نہیں پلس لگا دینا، سائن بڑی رقم کا لگاتے ہیں. آپ کیلکولیٹر پہ ہی لکھیں گے تو آپ کا جواب آ جائے گا. پھر یہ دیکھیں 12 اور x ان کے اندر میں کچھ سائن نہیں ہے تو ملٹیپلائی سمجھ لیں، یہ ملٹیپلائی ادھر آ کیا آ جائے گا جی ڈیوائڈ. تو یہ آ جائے گا -36/12. اور جب بیٹا اس کی کٹنگ کریں گے 12 1 12 12 3 36. تو x کا جواب آ گیا جی ہمارے پاس x = -3. اب بیٹا ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو نمبر لائن کے اوپر ریپرزینٹ کرنا ہے. نمبر لائن کے اوپر ریپرزینٹ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے ہم نمبر لائن بناتے ہیں. یہ بیٹا ہم نے نمبر لائن بنائی. نمبر لائن کا کوئی بھی اینڈ پوائنٹ نہیں ہوتا، اس وجہ سے اینڈ پہ آپ نے اس طرح کر لینا. درمیان میں ہم رکھتے ہیں جتنا بھی آنسر آئے گا اس حساب سے ہم نمبر لائن بنائیں گے. اس طرف پازیٹیو نمبر ہوتے ہیں، اس طرف نیگیٹو نمبر ہوتے ہیں. درمیان میں نیوٹرل ہوتا ہے، وہ 0 ہوتا ہے. یہاں پہ کہیں گے جی 3 تک ہے تو 3 تک ہی بنا لیتے ہیں. 1 2 3 -1 -2 اور -3 دونوں سائڈ پہ آپ نے سیم نمبر لائن بنا لینی ہے. تو اگر نہیں بھی بنائیں گے سیم تو پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے، بس آپ نے بتانا ہے -3 کہاں پر ہے. تو بیٹا -3 یہاں پر ہے. یہاں پہ ہم نے ڈاٹ کو تھوڑا سا سرکل کر کے اور تھوڑا سا اوپر لکھ لیں گے جی یہاں پر آ کے ہمارے پاس x جو ہے وہ -3 ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ ڈاٹ شو کارڈ ہے کہ یہ جو ہے x = -3 ہے. اب یہاں پر نیکسٹ کوسچن ہے، یہاں پہ سمپل ہم نے x کی ویلیو کو منوو کرنا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ پلس ہے تو ادھر جا کے کیا ہو جائے گا جی مائنس. حالانکہ فریکشن ہے تو فریکشن کو ختم کرنے کے لیے جو بھی نیچے ہوتا ہے ملٹیپلائی بوتھ سائڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بھی آسان کا سٹیپ ہے کہ کانسٹنٹ کو اس طرف لے جائیں. تو -12 اور یہ +6 ہے، ادھر آ کے مائنس ہو جائے گا. تو x/3 اور یہ مائنس مائنس پلس، یہ -18 آ گیا. تو بیٹا یہ دیکھیں x جو ہے وہ 3 کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ڈیوائڈ، ادھر آ کے کیا ہو جائے گا ملٹیپلائی. نہیں تو آپ یاد رکھیں جیسے کراس ملٹیپلائی کیا کرتے تھے، 1 کو x سے کریں گے تو x اور 3 کو ملٹیپلائی کرنا ہے ہم نے -18 کے ساتھ، تو اس کو کریں گے تو -54 آ جائے گا. بیٹا ہم نے حل تو کر لیا، ایک نمبر مل گیا ہمارا، لیکن اس کو نمبر لائن کے اوپر ریپرزینٹ بھی کرنا ہے، تو وہ ہم کرتے ہیں. ابھی یہ میں نے نمبر لائن بنا لیا آپ کے سامنے، جیسے آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی. درمیان میں ہم نے نیوٹرل رکھنا ہے جی 0. ادھر پازیٹیو انٹیجر جو ہوگا بڑا ہے، -54 ہے، 10 کا وقفہ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی 10 20 30 40 50 60 -10 -20 -30 -40 -50 -60. اور اب دیکھیں یہ 54 ہے، مائنس والی سائڈ ہے تو یہ 50 ہے. تو ہم اس کے درمیان میں تھوڑا سا ایسے کر دیں گے جی، درمیان میں تقریباً 50 اور 60 کے درمیان میں کر دیں گے. اور یہاں پہ ہلکا سا اوپر جا کے لکھ دیں گے جی x = -54.
तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन होती है इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी नीचे नंबर होंगे अगर तो सेम आ जाता है ना, जैसे 2 है फिर 2 आ गया फिर तो एक दफा ही लिखेंगे, लेकिन इसके अलावा जो भी नंबर होते हैं सबसे आसान काम ये होता है कि उसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दे। मतलब क्या मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12। यहाँ पे हम लिखेंगे जी इन सबको मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, यानी सबके साथ 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई लिख देंगे जी x ओवर 2, फिर माइनस आगे हमने बेटा फिर वही लिखना है 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3x ओवर 4, फिर बेटा इक्वल डाला हमने, फिर हम वही लिखेंगे सबके साथ 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 1 ओवर 12। तो बेटा ये देखें इसके साथ भी हमने इन तीनों को लिख लिया, इसके साथ भी लिख लिया और इसके साथ भी लिख लिया। अब कटिंग होके सिंपलीफाई होता जाएगा, 2 2 से कैंसिल, 4 12 का कितना बनता है जी 48, 48 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x आ जाएगा जवाब। अब देखिए 4 4 के साथ कैंसिल, 2 को 12 से करें 2 12 जा 24, 24 को बेटा 3 से करेंगे तो ये बनता है 72, तो साथ x है तो 72x आ जाएगा। कितना आसान सा काम। और इधर देखिए 12 12 के साथ कैंसिल, 2 4 जा 8, 8 को 1 से करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। और ये देखिए प्लस माइनस माइनस दोनों के साथ x है तो इस वजह सॉल्व हो जाएगा। 72 में से 48 निकालेंगे तो आता है 24, साइन बड़ी रकम का, 72 बड़ा है इसके साथ माइनस है तो बेटा माइनस आ गया, इधर आ गया 8। अब ये माइनस जो 20 माइनस 24 और x है ना इनके साथ कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आ क्या आ जाएगा डिवाइड। अगर यहाँ पे प्लस होता फिर ये समझ लें कि 20 माइनस 24 इसके साथ प्लस हो रहा था तो फिर उस हिसाब से हमने कहना था ये माइनस है इधर प्लस हो जाए, ऐसे करते हैं। तो इस वजह से ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बार बार आएगा तो इस तरह आपको स्टेप भी याद हो जाएगा। ये ऊपर हो नीचे हो कोई इश्यू नहीं है, फिर भी ये समझ लें प्लस माइनस माइनस ही आता है, एक भी माइनस हो ना तो माइनस आ जाता है। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो जवाब आता है -1 और 3। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 1 को अंदर और इसको बाद यहाँ पे 3 बाहर, तो 0 यहाँ पे लगाया डॉट लगा लिया, 3 3 जा 9, फिर ये बन जाएगा। तो तकरीबन ना 0.3 यानी कि आंसर आता है इसका। लेकिन ऐसे ही नहीं करना, इसको नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ये मैं आपको सिखाता हूँ। ये मैंने आपको पहले चैप्टर के अंदर नंबर लाइन पे सिखाया था कि ये गलती नहीं करनी। अक्सर टीचर ये गलती करते हैं कि ऐसे डिवाइड करवा के बताते हैं 0.3 यहाँ पर है, लेकिन वो बेटा बिल्कुल गलत होता है। क्या करते हैं ये है कि 0 इसके साथ कुछ भी नहीं, वो भी आपको समझाता हूँ। 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखें अगर तो 1 और 1/2, इसका मतलब है सबसे पहले आपने 1 पे पहुंचना है, फिर 1 के आगे जितने पार्ट्स होते हैं वो लिखते हैं। 2 है तो 2 पार्ट्स कर देते हैं, 1 2, फिर 2 में से पहले पार्ट की तरफ हम ऊपर चले जाते हैं। अब यहाँ पे ना इसमें कुछ भी नहीं है तो ये समझ लें इस वजह से 0 और -1 के दरमियान है। जैसे कि हमें पता चल गया कि 0.3 है यानी 0 और -1 के दरमियान आएगा, माइनस क्या ना इस वजह से इस तरफ आएंगे। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कितने पार्ट करने हैं जी 3। ये देखें हम मैं इसके टुकड़े करने लगा हूं 3, 1 2 और एक एंड वाला ही आता है उसके ऊपर 3। अब मैंने 3 हिस्से कर दिए और मैंने पहले ही हिस्से से ही ऊपर चले जाना। और यहाँ पे मैं बता सकता हूं कि ये जो पॉइंट है ना वो x = -1/3, उस हिसाब से उतने आपने हिस्से काट लेने हैं। आगे भी आता है तो मजीद आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल x की बेटा वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 है, हमने उस हिसाब से x को लेफ्ट साइड पे लेके आने, दूसरों को दूसरी तरफ। तो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 7 2 जा 14, x 7 को 4 से ज़रब करेंगे तो बेटा 28, 7 4 जा 28, ये 12x आ गया। तो x वाले हम इस तरफ ले जाते हैं, दूसरे इस तरफ, जो कि हमें आदत है, और हम इसी तरीके से x की वैल्यू निकालते हैं। ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ये भी x का, ये भी प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा देखें माइनस। दोनों के साथ प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब ये देखें 28 है तो ये प्लस के इधर आके आ जाएगा जी माइनस। तो अब आ गया हमारा माइनस माइनस बेटा क्या होता है प्लस। 14 और 12 बेटा कितना होता है 26।
साइन बड़ी रकम का, माइनस माइनस प्लस होता है ना, इस वजह से प्लस कर लिया। और ये आता है 26, ये मल्टीप्लाई इधर आ क्या हो गया डिवाइड, 26 ओवर माइनस 26 कटिंग करके x का जवाब आ गया हमारे पास -1। अब रोला क्या है, मसला क्या है, मसला बेटा कुछ भी नहीं, -1 है। हम क्या करेंगे कि नंबर लाइन को बनाया, ये देखें दरमियान में 0 1 2 3 -1 -2 -3 इस हिसाब से नंबर लाइन बना ले, बस ये नंबर बीच आ जाए। तो ये देखें -1 कहां पर है जी, इसके ऊपर है, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर लिख रहे हैं x = -1। तो इसी तरीके से बेटा हमारे पास 2 क्वेश्चन आ गए, वो भी हम जो है ना अभी यहाँ पर ही कर लेते हैं। तो मैं चलता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 और 6 इसी का पार्ट है, तो वो भी इंशाल्लाह इसी लेक्चर में करते हैं। और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2 वो आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा। जो 2 पार्ट रह गए वो भी है इंशाल्लाह अभी इसी लेक्चर के अंदर करवाता हूँ। चलते हैं। अच्छा तो बेटा ये क्वेश्चन में भी देखें फ्रैक्शन नजर आ रही है, और हर डिनोमिनेटर के अंदर आप देखें कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। ये मैंने क्वेश्चन इस वजह से रेज करके दोबारा लिख लिया कि आपका टाइम भी बचा रहे, मेरा भी, और आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे भी देखें बेटा 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो क्या करेंगे जी 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे लिखेंगे जी मल्टीप्लाई बोथ साइड। फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए सबसे आसान तरीका मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। अब इसके साथ लगाते जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई डाल के आगे 2x - 1 ओवर 3, फिर माइनस है आगे माइनस डाला, फिर 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3x ओवर 4, फिर हम उसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 ओवर 6। अब ये देखें इन तीनों को मैंने इसके साथ भी लिख लिया, इसके साथ भी लिख लिया और इसके साथ भी लिख लिया। तो इस वजह से याद रखें जब ये चीज की जाए तो हम दोनों तरफ एक काम कर सकते हैं। इस वजह से याद है डिनोमिनेटर में जब भी फ्रैक्शन खत्म करनी हो, नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी मैंने इसी तरीके से करना है। अगर तो फ्रैक्शन में होगा तो हम फ्रैक्शन को पहले खत्म करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, फिर भी हमने वहां पे भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। लेकिन वो इनक्वालिटीज है, वो भी इंशाल्लाह आसान है लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी है और बड़े इंटरेस्टिंग है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। अब ये देखिए 3 के साथ कैंसिल, 4 को 6 से करो तो ये बनता है 24, आगे आप ब्रैकेट डाल दो मल्टीप्लाई डाल दो जाए 2x - 1 ऐसे लिख लो। 4 के साथ कैंसिल, 3 को 4 से करो ये कितना बन जाएगा, 3 को 6 से 3 6 18 मल्टीप्लाई 3x लिख दिया। ये 6 के साथ कैंसिल, 3 4 12 आगे मल्टीप्लाई 5। ये एक और स्टेप मैंने कर लेते हैं। 24 को इससे करेंगे तो ये बन जाएगा 48x, और 24 को 1 से करें तो ये बन जाएगा -24, माइनस 18 को 3 से करें तो बेटा ये बनता है 54x, x है साथ तो x आ जाएगा, 12 को इसी 60। मैंने आपको कहा था x वाले एक साइड पे रखेंगे, दूसरे एक साइड पे। अब 48x और -54x ये दोनों को इस साइड पे रहने देंगे, ये माइनस है उधर जाके आ जाएगा जी प्लस। ये प्लस माइनस माइनस 54 में से 48 निकालें तो 6, साइन बड़ी रकम का 54 बड़ा है तो साइन बड़ी रकम माइनस आ जाएगा। इन दोनों को जमा करो, दोनों का प्लस है तो ये आ जाएगा 84। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना -6x के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड। यहाँ पे साइन देखा जाता है। अब 84 ओवर नीचे लिखे -6, तो इन दोनों को बेटा जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर आपने कर लेना है, 14 जा होता है तो प्लस माइनस फिर भी माइनस, एक भी माइनस आ जाए तो माइनस लगता है, तो x का जवाब -14 है। अब हमने -14 को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह रिप्रेजेंट करना है अभी सिखा देते हैं। अब ये देखें उसी तरीके से 14 है, थोड़ा सा बड़ा है तो इस हिसाब से आप कर लें। 3 का वक्फा भी रख सकते हैं, 4 का भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। तो 3 का रख लेते हैं, 3 6 9 12 15, यहां पर -3 -6 -9 -12 -15। अब 14 है जो आप, तो ये 15 से थोड़ा सा पीछे है, जो माइनस है तो इस साइड पे होगा। तो मैं जो है इसके ऊपर यहाँ पे लिखा दे दिया ऐसे बड़ा सा डॉट लगा देना, और इसके ऊपर लिख देना x = -40। लाइन भी लगा लेंगे फिर भी ठीक है, नहीं लाइन ना भी लगाएंगे कोई इशू नहीं, लेकिन डॉट को जो है ना वाज़िया नजर मार्कर के साथ हमने कर देना है। यहाँ पे भी देखिए 10 और 5 है, फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए वही कुलिया इस्तेमाल करेंगे, वही फार्मूला क्या है, 10 × 5
और आगे लिखेंगे जी मल्टीप्लाई बोथ साइड। 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई -5x/10 इक्वल है तो इक्वल लगा देंगे। फिर 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9, फिर -10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 10x/5। अच्छा दरमियान में भी लिखा हो फिर भी समझिए ऊपर होता है, ये उन्होंने ना यहाँ पे दरमियान में लिखा हुआ था फिर भी समझिए ऊपर होता है, ये इस वजह से मैंने ऊपर ही लिखा है। ये 10 और 10 आपस में कैंसिल, 5 5 25 प्लस माइनस माइनस -25x आ गया। और ये देखें 10 को 5 से करें 50, ये तो आप आपस में भी कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। 5 9 45 को 10 से करेंगे तो ये 450 आ जाएगा। ये 5 5 कैंसिल, तो 10 को 10 से करें तो 100x आ जाएगा। अब ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा जी प्लस, यानी 25x और प्लस 100x। x वाला इस वजह से इस साइड पे ले आए हैं और ये आ जाएगा 450। इन दोनों को माइनस प्लस माइनस 100 में से 25 निकाल तो 75 आ जाएगा 7x। साइन बड़ी रकम का प्लस है तो प्लस ही 450। ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड 450/75। अब इसको कैलकुलेटर पे आपने डिवाइड कर लेना है। कैलकुलेटर पकड़ेंगे ऊपर लिखेंगे जी 450 डिवाइड कर देंगे बेटा 75 को, तो ये हमारे पास जवाब आता है 6। तो यही आपका जवाब होगा। आपने इसको अब नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, वो भी कर लेते हैं। इंतहाई आसान काम है। ये नंबर लाइन बनाई 6 है तो उस हिसाब से 6 भी कर सकते हो। पॉजिटिव की तरह 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये 9 भी लिखेंगे फिर भी कोई इशू नहीं है। 6 है तो 6 आपको नजर आ रहा है, ये तो वाज़ेह सिंपल है। ये फ्रैक्शन वाला सिर्फ एक ही आया था, नेक्स्ट जो है वो आने हैं तो उस पे आपको अच्छे तरीके से जो है ना 3 नहीं है यहाँ पे 6 लिखेंगे, तो वहां पे आपको जाकर फ्रैक्शन के पार्ट्स करके बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डिटेल से हम वो भी सीखेंगे। पार्ट्स का जो एक ही आया था -1 और 3 वो भी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर थोड़ी सी कमी पेशी रह गई है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में आपको समझ आ जाएगी। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये तीनों में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। तो बेटा किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं आने वाली वीडियो में आपको वो प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, मैं इंशाल्लाह उसको ठीक कर दूंगा। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।